Good morning to you guys. Very good morning to everyone. सभी को नमस्कार, सभी को good morning. Very good morning to all the persons, those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को good morning. Tanisha, very good morning to you. Radha ji, very good morning to you. Very good morning to everyone. सभी को नमस्कार. Purnima, very good morning to you. Nancy, very good morning to you as well. Jyoti, very good morning to you. Yogesh, very good morning to you. Sneha, Neha, very good morning to you. Sweta, very good morning to you as well. Vishal, very good morning to you. प्रशांत, very good morning to you as well. Very good morning to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को good morning. मुस्कान जैसी कृष्णा to you. Anjali, very good morning to you. That's really very good, Anjali ji. Giriraj, Vidhi, Ritik, very good morning to you. Very good morning to all the persons, those who are connecting. Do drop a message in the Sankalp batch as well as the Super 40, as well as the Super 40 2.2, so that those people who are not in the Sankalp, they can also be the part of the session. Aman, very good morning to you. Very good morning to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को good morning. खुशबू, very good morning to you. Very good morning to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आशुतोष जी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें. We are just waiting for a few minutes. Once all other persons, those who used to connect with us, once they are going to be here, we would be starting it. This is going to be the last session from the Indus Valley Civilization, where we will be having discussion over several topics. बहुत important topics हैं कुछ ऐसे जो आपके prelims के लिए बहुत important हो जाते हैं. Simultaneously आपकी means के लिए भी important हो जाते हैं. One among those, अगर हम उनमें चर्चा करने जाएं, रश्मि जी, देवांश जी, very good morning to you. कि ऐसे कौन से टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, हम डिस्कस करेंगे इसका रिलीजियस बिलीफ, कि इसका रिलीजियस बिलीफ्स जो है वह किस तरीके का रहा है, और एट द सेम टाइम मतलब हम सोसाइटी को समझने का प्रयास करेंगे किस ग्राउंड पर, रिलीजियस ग्राउंड पर. Anjali ji, very good morning to you. Priyanka ji, very good morning to you. Devans, very good morning to you. Very good morning to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग. और जैसे ही हम रिलीजियस बिलीफ्स को कंप्लीट करते हैं तो हम इनकी जो सेल्स हैं, तो हम थोड़ा सा सेल्स पर भी चर्चा करेंगे. हम थोड़ा सा बीट्स जो है इनके, तो हम इनके बीट्स पर भी चर्चा करेंगे. And once we will be done with this, then we will be having discussion over another few important topics such as the political organization. And the last into this is going to be the decline of the civilization, the reason for the decline of this particular civilization. So these are going to be the topics of the discussion by the day. One more topic is there on which I want to have discussion over, and that is going to be the society of Indus Valley civilization. तो ये 4 से 5 टॉपिक हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले. Session is going to be very important, so please make sure, if you want to correlate the things, if you want to have a very sound understanding in context of the facts which we had discussed in the previous sessions, so you can be there in the whole session, and you can help me out whenever I'm going to ask you few questions. You can respond me whether you are having the idea about the important archaeological findings or not. तो हम इन सब चीजों पर चर्चा करने वाले हैं. सो प्लीज मेक श्योर कि अगर सेशन का हिस्सा है तो उस पर्टिकुलर समय पर सिर्फ और सिर्फ सेशन का ही हिस्सा रहे. Very good morning to you, Salini Tripathi ji. Very good morning to you, Ansika. Very good morning to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग. रिलीजियस बिलीफ्स पर हम चर्चा करने वाले हैं, और जो प्रैक्टिसेस हैं इन पर हम चर्चा करने वाले हैं. लेट मी हैव फ्यू ब्लैंक स्लाइड्स, बिकॉज हमने एक नया स्टार्ट किया हुआ है और हम कुछ इस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं. स्लाइड तो पीडीएफ आपके पास आ जाती है, आप दोनों ही मोड में आ जाता है. जो एनोटेशंस हैं, एनोटेशंस भी आपके पास आ जाते हैं, और एट द सेम टाइम दूसरा जो कंटेंट उसमें लिखा हुआ है, तो वो कंटेंट ऑलरेडी जो पीडीएफ्स में है वो भी आपके पास आ जाता है. हमने डिस्कस किया है कि जो कुछ हमारी नॉलेज है किसके बारे में, इस सिविलाइजेशन के बारे में, वह पूरी तरह से किस पर बेस्ड है, तो वह पूरी तरह से बेस्ड है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स पर. उम्मीद है आपको याद है, और हमने कल ही स्क्रिप्ट को डिस्कस किया था. और कल जब हम स्क्रिप्ट को डिस्कस कर रहे थे तो उस पर्टिकुलर समय में मैंने आपसे कहा कि इनकी स्क्रिप्ट जो है
उसके अर्लीस्ट ट्रेसेस जो हैं वो हमें किस वर्ष से नजर आए, तो अर्लीस्ट ट्रेसेस जो हैं वो 1853 से नजर आए। अलेक्जेंडर क्लेमेंट ने जब हड़प्पा से वो सील को डिस्कवर किया, तो दैट वर द अर्लीस्ट ट्रेसेस व्हिच वी आर हैविंग। अगर डिस्कवरी की बात करें तो वो डिस्कवरी कहां से नजर आ रही है? 1921, 22, 23 के आसपास से नजर आ रही है। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। लेकिन मोस्ट सरप्राइजिंगली अगर हम इस पर चर्चा करें कि भाई ऑलमोस्ट 150 साल हो गया, वो 1853 से 50 वर्ष वो आ गए जब हम 1900 पर आए, और 1900 से लेकर तकरीबन 170 वर्ष से हो चुके हैं, मतलब 120 वर्ष से हो चुके हैं, मतलब तकरीबन तकरीबन पौने 200 साल। और इन पौने 200 साल में हम इस स्क्रिप्ट को डिसिफर नहीं कर पाए हैं। तो हम आज भी क्या लगाते हैं? हम आज भी अंदाजा लगाते हैं सिविलाइजेशन के बारे में। तो इनकी जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं वह भी हम किसके अंदाजे पर, किस बेसिस पर लिखने जा रहे हैं? तो वह भी हम पूरी तरह से कंक्लूड करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेसेस व्हिच वी आर हैविंग। दिस इज समथिंग व्हिच यू गाइस नीड टू बी thoroughly clear with. रिलीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने कुछ पॉइंट आपसे बहुत क्लियरली कहे हैं कि भाई ये सिविलाइजेशन जो है, ये सिविलाइजेशन कैसी नजर आती है। तो हम कुछ स्पष्ट पॉइंट कह सकते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि सर एक सेक्युलर सोसाइटी है। कैसी सोसाइटी है? बोले सर सेक्युलर सोसाइटी है। Am I very clear to all the person with the voice this statement that the Indus Valley civilization was a secular society? क्यों सेकुलर सोसाइटी? हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द सेकुलर, आज जब हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करने से आते हैं तो सेकुलर में हमें क्या नजर आता है? सेकुलर का एक लिटरल मीनिंग है गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी is not going to preach any one religion, is not going to promote any one religion over any other religion. Am I very clear to all the person with the very same? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, क्या मैं आपको क्लियर हूं पूरी तरह से कि हम जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, प्रस्तावना की बात करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic. तो यहां जब हम सेकुलर होने की चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हम कह रहे हैं कि भाई हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो गवर्निंग बॉडी है, वह क्या नहीं करेगा? किसी भी एक धर्म को दूसरे धर्म के ऊपर प्रमोट नहीं करेगा। और जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 25 देखने जाते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 25 में बहुत क्लियरली नेहा जी के पास, खुशबू जी के पास, पूर्णिमा जी के पास, रश्मि जी के पास और हमारी सभी छात्र छात्राएं जो इस सेशन का हिस्सा हैं, चाहे आप बीपीएससी के साथ एसोसिएटेड हो, चाहे आप यूपीपीसीएस के साथ एसोसिएटेड हो, चाहे एमपीपीएससी के साथ एसोसिएटेड हो, या किसी भी अन्य स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप सबके पास अधिकार है। यू आर हैविंग द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। आपके पास आस्था का अधिकार है। हमारे साथ तो जो कि आस्था जी भी हैं, अभी सेशन का हिस्सा नहीं है, वो रिकॉर्डेड देख रही होंगी। और कंसाइंस के साथ साथ आपके पास प्रैक्टिस करने का अधिकार है, आपके पास प्रोफेस करने का अधिकार है, आपके पास प्रमोट करने का अधिकार है। तो आप पूरी तरह से फ्री है, विच मीन्स द इंडिविजुअल्स or the habitants of that particular period of by the day are free to promote, to profess, to practice, to have conscience in any religion. On the basis of this particular theory, we can conclude, हम क्या conclude कर सकते हैं? हम conclude कर सकते हैं कि इंडस वैली civilization जो रहा है वो एक secular society रहा है। Am I very clear to all the person with the very same? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूँ। अब अभी अंजलि जी ने कमेंट किया, बोले सर एनिमिज्म नजर आ रहा था हमें, मतलब हमें नेचर वर्ड्स पर नजर आ रहे थे। अब हमें यही समझना है, जैसे आज आप भारत में देखते हैं विशाल जी, राधा जी, अमन जी, आशुतोष जी, शालिनी जी, अंजलि जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्र हैं। आज आप भारत में देखते हैं कि आर्टिकल 25 होने के बावजूद भी हमारे यहाँ कई सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार हैं, जिन्होंने धर्म का ठेका लेके रखा हुआ है और जो हिंदू वादी होने का दावा करते हैं और हिंदूवाद को बढ़ाने का दावा करते हैं। शायद कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा अभाव हो सकता है, जानकारी का थोड़ा सा अभाव हो सकता है, क्योंकि जो ऑलरेडी है उसको प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं है। एज फार एज आम कंसर्न 60-65% अगर हमारे देश की आबादी जो है वह हिंदू धर्म के साथ एसोसिएटेड है, तो हमें इसको बहुत ज्यादा बताने की, चिल्लाने की, गाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी विजिबल है।
लेकिन अगर हम समझें तो इसी राष्ट्र में 60% लोगों के साथ साथ हमारे पास 40% अन्य ऐसे लोग हैं जो अलग अलग धर्मों का प्रचार प्रसार करते हैं, अलग अलग धर्मों को प्रमोट करते हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? तो लाइकवाइज अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पर चर्चा करें, तो लाइकवाइज इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें जो अधिकांशतः लोग नजर आ रहे थे, तकरीबन तकरीबन 2000 सील हमें नजर आई हैं। उन 2000 सीलों के आधार पर हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि इनके रिलीजियस बिलीफ्स कैसे रहे होंगे। बोले सर ये नेचर वर्शिप पर रहे होंगे, लेकिन वहीं यह तथ्य भी हमारे पास है कि यह सेक्युलर सोसाइटी है, पंथ निरपेक्ष सोसाइटी है, जहां सभी के लिए रास्ता जो है वो खुला है कि आप किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? यू पीपल कैन लेट मी नो सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए, क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को इसके साथ क्लियर हूं, ताकि हम आगे बढ़ सकें और अब हम ये समझ सकें कि अगर मैं सेकुलर सोसाइटी कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि यहाँ कई प्रकार की क्या किया जा रहा है। बोले सर कई प्रकार से वर्शिप जो है उसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। देखो हम सेकुलर का मैं एक जो लिटरल मीनिंग है वो लिखने जा रहा हूं भाई। सबसे पहले तो हिंदी में मैं इसे लिख देता हूं कि ये पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, क्या है बोले सर? पंथ निरपेक्ष है। और पंथ निरपेक्ष को भी मैं आपका डिफाइन कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। यह क्या है बोले? पंथ निरपेक्ष है। अब इसके बाद इसका तात्पर्य क्या है, इसका बिलीफ क्या है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है? बोले सर गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, governing authority shall not promote any one religion, any one religion over other religion, over other religion। ये है हमारा इसका लिटरल मीनिंग भाई। जो पेपर हमसे पूछ लेता है सेकुलर का लिटरल मीनिंग कई बार हमसे, अंजलि जी बिल्कुल इसका मतलब ही वही है कि आप फ्री हैं। अब जब सरकार किसी स्पेसिफिक धर्म को प्रमोट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप स्वतंत्र हैं, आपके पास रिलीजियस फ्रीडम है, आपके पास वो फंडामेंटल राइट में मेंशन किया गया है। लेकिन सेकुलर का मतलब ये है। अब ये मोहिनी जी ने पूछा कि सर उस समय में लॉट्स ऑफ रिलीजन कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सर रिलीजन तो जो है वह बहुत बाद में आए हैं। मैंने कब कहा कि लॉट्स ऑफ रिलीजन वर देयर? मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं मोहिनी जी। बस आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा। मैंने ये कहा कि लोगों के पास ये अधिकार है कि वह अपने जो इंडिविजुअल बिलीफ्स हैं उन इंडिविजुअल बिलीफ्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्ञान पे जाना ही नहीं है, डिबेट में नहीं जाया करो। पहले चीजों को सीखो तो बेटा, पहले चीजें सीखेंगे तब तो चर्चा कर पाएंगे। निश्चित तौर पे मुझे आइडिया है कि हम जब हिंदू सिविलाइजेशन की चर्चा करते हैं तो मैं खुद आपको लगातार कह रहा हूं कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एक प्री हिंदू कल्चर है। हमें क्वेश्चन नहीं उठाना उस पर, हमें ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेस व्हाट एवर वी आर हैविंग हमें चीजों को कंक्लूड करने का प्रयास करना। मैं वही कर रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। मतलब यहाँ जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी रही हो बेटा, जो कुछ भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रहा हो जिस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे, उस पर हम चर्चा कि एग्जैक्टली बिलीव्स बेसिकली। तो अब यहां हमें ऐसा क्या क्या नजर आ रहा है, तो अब हम इस पर चर्चा करने वाले हैं कि भाई क्या क्या नजर आया। बोले वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, worship of mother goddess। Am I very clear to all the person with the very same? You people can let me know। जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए, क्या मैं आपको क्लियर हूं कि यहां से हमें क्या नजर आया? बोले सर वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। चलिए अब बोले सर इसको थोड़ा सा हमें बता दीजिए, जब हम अभी फैक्ट्स पढ़ रहे थे तो ये हमें कैसे पता चला कि लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग जो बिलीव्स हैं उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसमें मदर गॉडेस के ट्रेसेस जो है वो हमें कैसे नजर आ रहे हैं। तो हम मदर गॉडेस के ट्रेसेस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सभी छात्र छात्राओं से मेरा अनुरोध है थोड़ा सा कि भाई मैं बहुत वास्ट चर्चा करने वाला हूं, थोड़ा सा प्लीज मेक श्योर कि मुझे सुनने का ज्यादा प्रयास करिए।
और मैं जब निश्चित तौर पर आपसे सवाल पूछूं तो वहां रिस्पॉन्ड भी करिए, क्योंकि अब मैं आपको मदर गॉडेस हमें जो ट्रेसेस नजर आए हैं हम उस पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे नजर आए हैं हमें। सो जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर दिस। सो कमिंग बैक टू दिस ओनली, अब मदर गॉडेस के कंटेक्स्ट में क्या नजर आ रहा है? बोले सर हमें टेराकोटा फिगराइंस नजर आई है। क्या फिगराइंस नजर आए हैं? बोले सर टेराकोटा फिगराइंस नजर आए हैं, टेराकोटा फिगराइंस। और ये टेराकोटा फिगराइंस क्या कर रहे हैं? बोले सर ऑफ सैमी न्यूड, ऑफ semi nude figures, of semi nude figures identified with शक्ति और मदर गॉडेस, शक्ति और मदर गॉडेस। आपको याद है हमने मोहनजोदाड़ो पर चर्चा की थी बेटा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कई सारे छात्र छात्राएं निश्चित तौर पर इन्हें याद होगा कि हाँ सर आपने मोहनजोदाड़ो के कंटेक्स्ट में कहा था कि हमें यहाँ से पशुपतिनाथ की सील मिली है और हमें यहाँ से टेराकोटा फिगराइन मिला है, किसका? बोले मदर गॉडेस का। This in this particular seal or in this particular figurine, a lady, she was standing on the head, एक किस पे खड़ी हुई? बोले अपने सिर के बल खड़ी हुई है। और इनके वेजाइना से क्या निकल रहा है? बोले सर एक कुछ तो भी बेल सी निकल रही है, कोई प्रोडक्शन हमें नजर आ रहा है। तो इसके आधार पर हमने इसे कैसे आइडेंटिफाई किया? तो इसके आधार पर हमने मदर गॉडेस के तौर पर इन्हें आइडेंटिफाई किया है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? यू पीपल कैन लेट मी नो, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल क्लियर हूं इसके साथ। एम आई अंडरस्टूड टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम, सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। और फिर उसके साथ ही साथ हमें हड़प्पा की कंटेक्स्ट में भी क्या नजर आया? बोलिए सर हमें हड़प्पा से भी ऐसा ही कुछ नजर आया। अ सील एट हड़प्पा, a seal at Harappa depicts the earth, or mother goddess, with a plant growing, with a plant growing from her bomb। Am I very clear to all the person those who are connecting with the same as well? कि भाई देखो हमें यहां से भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये हमें ट्रेसेस नजर आ रहे हैं, किसके ट्रेसेस नजर आ रहे हैं? तो ये ट्रेसेस हमें नजर आ रहे हैं आपकी मदर गॉडेस के। तो भाई मदर गॉडेस का तो उम्मीद है मुझे कि आपको पूरी तरह से क्लियर है कि हाँ मदर गॉडेस की प्रेजेंस जो है वहां रही है। अब अंजलि जी ने कहा कि सर अब हमें इसके बाद क्या नजर आया? बोले सर इसके बाद जाकर हमें पशुपतिनाथ जो है तो वो है पशुपतिनाथ नजर आए। जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट। बोले सर हमें यहां पर पशुपतिनाथ की सील नजर आई है, तो वर्शिप ऑफ पशुपतिनाथ। ठीक है, अब पशुपतिनाथ हम आज के समय में किसे कंसिडर कर रहे हैं? तो बोले सर आज के समय में हम इन्हें महादेव के नाम से कंसिडर कर रहे हैं। कैसे कंसिडर कर रहे हैं? बोले महादेव के नाम से कंसिडर कर रहे हैं। और ऋतिक जी यू आर हैविंग द लास्ट स्लाइड, यू कैन हैव अ लुक ओवर दिस। लक्ष्मी भाई गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। एग्जैक्टली खुशबू जी। So shall I head forward to the next now? Right now coming to this only and you people can hear me out over the पशुपतिनाथ। मैंने देखो पशुपतिनाथ सील के बारे में आपको कुछ बताया था। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये सील कहां से नजर आई है। बोले सर रेक्टेंगुलर सील, रेक्टेंगुलर सील डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। कहां से नजर आ रही है? बोले सर मोहनजोदाड़ो से सील जो है वो हमें नजर आ रही है। और इसके कंटेक्स्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे।
एग्जैक्टली अंजलि जी, दोनों के ट्रेसेस जो है, मदर गॉडेस के ट्रेसेस सिर्फ एक ही साइट है जिससे हमें नजर नहीं आए हैं। अंजलि जी, अब आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सी ऐसी साइट है जिससे हमें मदर गॉडेस के ट्रेसेस नजर नहीं आए हैं। I'm looking after the answer from each and every individual because I have taught the very same. That this is the only site from the Indus Valley civilization where we didn't find any traces of the mother goddess or the worship of the mother goddess. Exactly. कालीबंगन, तो कालीबंगन को छोड़ दिया जाए तो सभी साइड से कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसा नजर आ रहा है। Am I very clear to you, Anjali, with the same? चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट, एंड यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर दिस एज वेल। तो अब जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, किस पर चर्चा कर रहे हैं बोले सर? पशुपतिनाथ की सील पर। तो ये हमें कैसा नजर आया? बोले सर थ्री फेस था, ये आपने हमें पढ़ाए थे, ये आपने बताया था थ्री फेस था, मेल गॉड। ठीक है, सिटेड इन अ योगिक पोस्चर, कैसे बैठे हुए हैं? बोले सर एक योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, सिटेड इन अ योगिक पोस्चर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, और इसके अलावा आपने कहा कि सर सराउंडेड बाय, ऐसा आपने हमें बताया हुआ था। और आपने कहा था कि अगर हम इनके लेफ्ट में देखें तो हमें इनके लेफ्ट में कौन से एनिमल्स नजर आ रहे? तो आपने कहा था सर एलिफेंट और राइनो जो है वह हमें कहा नजर आ रहा है? पूरे सर एलिफेंट एंड राइनो, ये हमें इनके लेफ्ट में नजर आ रहे हैं। सॉरी, एलिफेंट और टाइगर, माफ कीजिएगा, मैंने एलिफेंट और टाइगर आपको बताया था, है ना, राइनो नहीं, अभी कोई बाद में परेशान हो जाए। तो एलिफेंट और टाइगर मैंने आपको बताया था कि हमें क्या नजर आ रहे हैं? बोले सर एलिफेंट और टाइगर जो है वह हमें लेफ्ट में नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जाकर अगर हम राइट की चर्चा करने जाए तो राइट में क्या नजर आ रहा है? बोले सर राइट में हमें राइनो नजर आ रहा था, और राइनो के साथ साथ सर बफेलो जो है, तो हमें बफेलो नजर आ रही थी। और अगर हम इनके चरणों की बात करने जाए, इनके फीट की बात करने जाए, तो इनके चरणों में क्या नजर आ रहा है? सॉरी, तो इनके चरणों में जो है वह हमें आपका डियर नजर आ रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर करेक्टिंग? यू पीपल कैन लेट मी नो। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? अंजलि जी राइनो नजर आ रहा है। चलिए, तो ये हमें हमें क्या नजर आए? बोले सर ये हमें पशुपतिनाथ जी नजर आ रहे हैं और मदर गॉडेस के ट्रेसेस नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद जाकर जो हम एनिमिज्म वाली बिलीफ पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम देखिए वर्शिप ऑफ एनिमल्स पर आ रहे हैं। किस पर आ रहे हैं? बोले सर वर्शिप ऑफ एनिमल्स। और वर्शिप ऑफ एनिमल्स में जब हम देखने जा रहे हैं तो क्या नजर आ रहे हैं? बोले सर इन्होंने कई सारे जानवरों की पूजा की है। वर्शिप्ड एनिमल्स, वर्शिप्ड एनिमल्स such as such as humped bull, humpless bull, इसकी सबसे ज्यादा पूजा कर रहे थे, सबसे ज्यादा पाया गया है। बफेलो, हमें बफेलो की ट्रेसेस भी नजर आए हैं। एट द सेम टाइम हमें जो टाइगर है, तो टाइगर के ट्रेसेस भी नजर आ रहे हैं। हमें वर्ड्स जो है, तो वर्ड्स के ट्रेसेस भी नजर आ रहे हैं। और राइनो जो है, तो हमें राइनो के ट्रेसेस भी नजर आ रहे हैं। और एक कुछ मिथिकल एनिमल्स भी कंसीडर करे गए कि भैया वो यूनिकॉर्न पर जब हम चर्चा करते हैं तो यूनिकॉर्न क्या है? बोले सर एक मिथिकल एनिमल है। ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है मोस्ट फाउंड एनिमल ऑन सील्स, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एनिमल किस पर? बोले सर सील्स पर। तो ये कौन था? तो मैं कई बार प्रीलिम्स पूछ लेता है, सो यू शुड बी थरोली क्लियर कि ये कौन है। बोले सर यूनिकॉर्न है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? और ये कैसा नजर आ रहा है हमें? तो ये इसका भी प्रेजेंस है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये हमें एनिमल की प्रेजेंस नजर आ रही है। अब उसके बाद जाकर फिर जब हम अगला देखने जा रहे हैं तो हमें क्या नजर आ रहा है? तो बोले सर ये आपके जो ट्रीज रहे हैं उसको भी क्या करते थे? बोले पूजा करते थे। वर्शिप ऑफ ट्रीज, वर्शिप ऑफ ट्रीज, जो कुछ नेचर में पाया जा रहा है,
काऊ के ट्रेसेस बहुत ज्यादा नहीं है यहां से। काऊ जो सबसे ज्यादा पवित्र कंसीडर करी गई है खुशबू जी, वो काऊ हमें पवित्र कंसीडर करी गई है वैदिक सिविलाइजेशन में। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द वेरी सेम खुशबू जी? काऊ के ट्रेसेस हैं, लेकिन ये नहीं है कि काऊ की बहुत ज्यादा हमें क्या नजर नहीं आ रहा है, इसका मोटिव्स जो है वह बहुत सारे पिक्चर उसमें सील्स पर नजर नहीं आ रहा। Shall I head forward to the next one? Tanisha, please to let me know बेटा। ये जो पीपल की पूजा चली आई है ना, पीपल को सबसे पवित्र माना जा रहा है, तो ये पीपल को सबसे पवित्र कहां से माना जा रहा है बेटा? तो पीपल वाज कंसीडर्ड एज मोस्ट सैक्रेड। ये कहां बोले सर? इस पर्टिकुलर पीरियड में हम यहां कंसीडर कर सकते हैं, क्या कंसीडर कर सकते हैं बोले सर? पीपल was considered एज अ मोस्ट सैक्रेड। सबसे पवित्र वृक्ष जो माना जा रहा है वह कौन सा माना जा रहा है बोले सर? हमारा पीपल माना जा रहा है। और उसके बाद जाकर हमें क्या नजर आया बोले सर? किस आधार पर आप ये कह रहे हैं बोले सर? डिस्कवरी ऑफ large number of seals are large number of seals are with people trees with people trees engraved on them understood to all the person those who are connecting है। क्योंकि हमने जो मैट्रियार्कल सोसाइटी कही है, तो मैट्रियार्कल सोसाइटी इसने हाँ योगेश हमने इसी आधार पर तो कही है कि female figurines have outnumbered the male figurines. Similarly, what we can conclude from here as well, beta? Similarly, we can conclude the people figurines or people motifs have outnumbered the other plants or the other trees. So it might be possible कि people जो है वह सबसे पवित्र कंसीडर किया गया हो। अब जो एक और क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है, मैं इसको भी भाई यहाँ मार्क करने जा रहा हूँ, स्टार लगाने जा रहा हूँ। प्लीज बी वेरी क्लियर कि आप इसको स्टार लगा लें और अच्छे से नोट कर लीजिएगा, दिमाग में भी रखिएगा कि हमें यहां से क्या नजर नहीं आया है बोले सर? नो स्पेशल ट्रेसेस और प्लेस, नो स्पेशल ट्रेसेस ऑफ प्लेस, नो स्पेशल ट्रेसेस ऑफ प्लेस फॉर वर्शिप सच एज टेम्पल्स। हमें मंदिर जैसी कोई बहुत विशेष जगह जो है वह नजर नहीं आई है। Am I very clear to all the persons those who are connecting here? और कई बार प्रोटोसिवा पर भी चर्चा करी जाती है। बोले कैसे? बोले सर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या किया जा रहा है? बोले सर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है? बोले ऑफ फालोस, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फालोस। और फालोस विच मीन्स लिंगम वी आर टॉकिंग अबाउट। आपने भगवान शंकर जो है, तो भगवान शंकर का एक इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना? हम मंदिरों में जाते हैं तो हमें एक इस तरीके का स्टोन का स्ट्रक्चर नजर आता है, तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं बोले सर? हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे थे बोले सर? फालोस जैसे किसी स्ट्रक्चर की पूजा कर रहे थे। एम आई वेरी क्लियर? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। एग्जैक्टली। एंड योनि वर्शिप एज वेल, एंड योनि वर्शिप एज वेल, विच मीन्स हम क्या चर्चा कर रहे हैं बोले सर? कल्ट ऑफ फर्टिलिटी। ये बहुत जरूरी है, आप इसे कैसे देख रहे हैं भाई? जब हम योनि वर्शिप की चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कल्ट ऑफ फर्टिलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। फिर से हमें मदर गॉडेस के ट्रेसेस जो हैं वह नजर आ रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग है? जो प्रोड्यूस करने वाला है, जो जिसके माध्यम से उत्पत्ति हो रही है, ये वो सब की क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। देवी जो है वह पूजनीय है, वंदनीय है। यत्र नार्यन्ते पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों की पूजा होती है, जहां नारियों का सम्मान होता है, वहीं देवताओं का निवास होता है। हम निश्चित तौर पर इसको यहां से कंक्लूड कर सकते हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? हम अभी आगे जाकर वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि बड़ी अच्छी पोजीशन हमें नजर आ रही है। लेकिन इस तथ्य का शुरुआत कहां से है? तो इस तथ्य की शुरुआत हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से नजर आ रही है।
यत्र नार्यन्ते पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों की पूजा है, जहां नारियों का सम्मान है, वहां देवताओं का निवास है और देवताओं का वास है। तो आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं भाई कि ऐसा कुछ प्रेजेंस जो है वो हमें कहां से नजर आ रहा है। बोले सर इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी नजर आ रहा है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, सॉरी। अब इसके बाद अगर हम चर्चा करें, किस पर चर्चा करें, बोले सर वो आपने प्रीस्ट किंग का स्टैच्यू हमें दिखाया था। तो प्रीस्ट किंग का स्टैच्यू दिखाने के बाद आपने हमसे कहा था कि भाई देखिए ये अम्यूलेट्स पहन रहे हैं। तो कई सारे छात्र छात्राओं ने कहा बोले सर ये अम्यूलेट्स तो आज फैशन का हिस्सा है। मैंने काले धागे पर चर्चा करी थी उस समय पर आपके साथ। तो हम इसको यहां कैसे लिखने जा रहे हैं, बोले सर द पीपल्स हैड फेथ इन द मैजिक। लोगों का विश्वास था किसमें, बोले सर जादू जैसी चीजों में, चार्म जैसी चीजों में, सैक्रिफाइसेस जैसी चीजों में। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन, सुपरस्टिशन जैसी चीजों में। जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। अब बोले सर इसको जस्टिफाई कर दीजिए आप, तो किस आधार पर आप ऐसा कहने जा रहे हैं। बोले सर यूज ऑफ, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट, यूज ऑफ आमलेट। क्या देखा, बोले सर हमने आमलेट जो है तो वो आमलेट का यूज देखा, या आमलेट कह लीजिए या अम्यूलेट्स कह लीजिए, ठीक है। सजेस्ट देयर बिलीव्स इन, इनके बिलीव्स हमें किस में पता चल रहे हैं, बोले सर हमें इनके बिलीव्स जो है वो मैजिक में नजर आ रहे हैं। सजेस्ट देयर बिलीफ, suggest their belief in magic. Am I very clear to all the persons, those who are connecting here? Superstitions, etc. अब उसके बाद और क्या ऐसे ट्रेसेस हैं, बोले सर हमें कुछ ऐसे ट्रेसेस भी नजर आए हैं जिसके माध्यम से हमें सैक्रिफाइसेस के बारे में पता चल रहा है। few we have discovered few such kind of seals as well, seals of man and women, seals of man and women performing the animal sacrifice, performing the एनिमल सैक्रिफाइसेस। तो हमें भाई ये जो जानवर की बलि है यह देते हुए भी क्या नजर आ रहे हैं, बोले लोग नजर आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको याद है तो हमने लोथल को डिस्कस किया था, हमने कालीबंगन को डिस्कस किया था। हमें यहां से क्या नजर आए हैं, बोले फायर ऑल्टर्स। हमें यहां से फायर ऑल्टर्स के ट्रेसेस नजर आए हैं, फायर ऑल्टर्स ट्रेसेस। उम्मीद है आपको याद होगा कि हाँ सर नजर आए हैं। कहां से, बोले सर फ्रॉम लोथल, फ्रॉम लोथल, फ्रॉम कालीबंगन, एज वेल एज फ्रॉम बनवाली। तो उम्मीद है ये आपके दिमाग में है कि हाँ सर ऐसा हमें पढ़ाया गया है। अब इसके बाद जाकर तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा मोहिनी जी कि हाँ ये लोग जो है वो अलग अलग तरीके के बिलीफ वाले लोग थे। और इसके बाद जाकर फिर हम एक और पॉइंट पर चर्चा कर सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंट काइंड ऑफ द बरियल प्रैक्टिसेस। अलग अलग प्रकार की बरियल प्रैक्टिसेस जो है तो हम इस पर चर्चा करने वाले बरियल्स। उम्मीद है इस आधार पर आप निश्चित तौर पर क्या कर सकते हैं, आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक सेक्युलर सोसाइटी रही होगी। हमें सर सर्कुलर, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर बरियल्स नजर आए हैं। हमें अ पेयर ऑफ मेल, a pair of male and female skeletons and female skeletons have been discovered, have been discovered, have been discovered together फ्रॉम लोथल। तो हमें लोथल से ऐसे ट्रेसेस नजर आए हैं जहां पर पुरुष और महिला को एक ही साथ जलाया गया था। एट द सेम टाइम हमें मेगालिथ बरियल्स नजर आ रहे हैं। मेगालिथ बरियल्स वर फाउंड एट द सुरकोटदा, वर फाउंड एट सुरकोटदा। सुरकोटदा से हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर हमें मेगालिथ बरियल्स नजर आ रहे हैं और एट द सेम टाइम धूलाबीरा से भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अंजलि जी, हम पॉट बरियल पर भी चर्चा करने वाले। अर्थन्स,
earthen, sir, pot and urn, sir, ornaments, sir, ornaments, sir, and food grains and food grains were also worried were also worried were also worried with the dead. तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमें नजर आई है. एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग? यू पीपल कैन लेट मी नो. जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल क्लियर हूं. तो ये हमारा क्या हो गया भाई? ये हमारे रिलीजियस बिलीफ्स हो गए. Anjali ji, in the last point I have started, earthen pot and the urn, ornaments and food grains were also buried with the dead. जो एक मरा हुआ व्यक्ति था, उस मरे हुए व्यक्ति के साथ हमने क्या देखे हैं? उस मरे हुए व्यक्ति के साथ हमने देखे हैं कि कुछ जो पॉट्स हैं, कुछ बर्तन जो हैं, कुछ यूटेंसिल्स जो हैं, कुछ फूड जो है, द थिंग्स बेसिकली विच वर लाइक्ड बाय दैट इंडिविजुअल द होल लाइफ. तो ऐसी चीजों को क्या किया जा रहा था? उसके साथ जलाया दफनाया जा रहा था. कॉफिन बरियल प्रैक्टिसेस हमें नजर आई है. फ्रैक्शनल बरियल प्रैक्टिसेस जो है वो हमें नजर आई है. Am I very clear to all the persons those who are ornaments? बेटा ornaments I'm talking about. जो पूरे जीवन आपने पहना हुआ है. You are having the last slide, Tanisha. You can have a look over this. Once done with the same, you can let me know so that I can head forward to the next one. ठीक है. एग्जैक्टली बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ भी हम इसके आधार पर कंक्लूड कर सकते हैं. बिल्कुल कंक्लूड कर सकते हैं श्वेता जी. अगर हम चाहें तो हम एक सेपरेट पॉइंट इस आधार पर भी दे सकते हैं. पीपल्स वर हैविंग बिलीफ आफ्टर द डेथ, बिलीफ इन लाइफ आफ्टर द डेथ, सॉरी. So shall I head forward to the next one? Can we have further discussions in context of the seals? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्या अब हम जो है इनकी सील्स पर और इनकी जो बीट्स हैं इस पर चर्चा कर सकते हैं? ठीक है. सो राइट नाउ आई एम हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एंड यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर द सील्स. तो अभी आप मुझे सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पर सुन सकते हैं. सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. प्रियंका झा जी, आपको समझ आ रहा है सारी चीजें? लेट मी हैव अ लुक ओवर द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट इनटू द सेशन. जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट एंड देन आई विल बी हेडिंग टू द नेक्स्ट. सो अंजलि जी, राधा जी, तनीषा जी, पूर्णिमा जी, नेहा, अंजलि जी, श्वेता जी, नैन्सी जी, ज्योति, स्नेहा, निवेदिता जी, मुस्कान, आशुतोष, गिरिराज, ऋतिक, विधि, अमन, समर्थ, खुशबू, देवांश, रश्मि जी, प्रियंका जी, अंशिका जी, शालिनी जी, मोहिनी, क्षमा, महिमा, लक्ष्मी, योगेश, विशाल. सो दीज आर द स्टूडेंट्स हु आर वेरी कंसिस्टेंट एंड हु आर कनेक्टिंग इनटू द सेशंस. चलिए ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा. चलिए लेट्स हैव डिस्कशन ओवर दिस. नहीं, मैंने सिर्फ उन्हीं छात्र छात्राओं के नाम लिए हैं जो प्रेजेंट हैं. ठीक है, परेशान नहीं होना है आपको. सो राइट नाउ वी विल बी हैविंग डिस्कशन ओवर द सेल्स. तो उम्मीद है कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि तकरीबन तकरीबन 2000 सेल्स हमें नजर आई है. अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 2000 seals have been discovered. Seals have been discovered by archaeologists by archaeologists from the Harappan sites. From Harappan sites. अब सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए. अब दूसरा ये कि ये जो सील्स है वह बनी किसकी हुई है? सो मोस्ट ऑफ देम
most of them were made up of स्टेटाइट, were made up of स्टेटाइट। ये एक जो सॉफ्ट स्टोन है उस सॉफ्ट स्टोन की बनी हुई है। मैं यहां लिख दे रहा हूं अ काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टोन, ठीक है। तो इस सॉफ्ट स्टोन की ये सील्स जो है वो अधिकांशतः हमें नजर आई हैं। हालांकि कुछ सीलों पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, few of them were made up of were made up of गोल्ड, कुछ सोने की भी बनी हुई है। आपने टेराकोटा की पढ़ा ही हुआ है ना? हमने टेराकोटा प्लग के बारे में पढ़ा हुआ था, खुशबू ने पूछा था सवाल। कुछ एगेट्स की बनी हुई है एक तरीके का, ये भी प्रीसियस स्टोन है, एक्सेट्रा। तो इस तरीके की सीरीज हमें नजर आ रही है। और अगर हम इनके डायमेंशंस पर चर्चा करने जाएं तो इनकी डायमेंशंस क्या रही हैं? बोले सर, एक अगर आइडियल और स्टैंडर्ड डायमेंशंस की बात करें, स्टैंडर्ड हड़प्पन स्टैंडर्ड हड़प्पन seal was square in shape, seals were square in shape। क्या थे बोले सर? ये स्क्वायर थे, इनका जो शेप है वो स्क्वायर शेप नजर आ रहे थे, विद अ 2x2 डायमेंशन, with a 2x2 dimension। Am I very clear to all the persons those who are connecting? You people can let me know। जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए, क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल क्लियर हूं। अब मोहिनी जी के मन में सवाल था परसों, सर मोहिनी जी जानना चाहती थी कि इन्होंने स्कूल में पढ़ा था, क्योंकि अभी बहुत पास में ही स्कूल जो है, या बहुत समय नहीं हुआ स्कूल पढ़े हुए, तो रिसेंटली ही इन्होंने क्या किया है, स्कूल कंप्लीट किया है। और चूंकि मेमोरी जो है वह भी तेज है मोहिनी जी की, तो इन्होंने मुझे फिर बाद में यहाँ पूछा, उसके बाद इन्होंने मेरे साथ ऑडियो मैसेज जो है वह भी शेयर की और बोले सर मैंने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ था कि सील लगा दी जाती थी इसको चेक करने के लिए कि भाई अगर एक सील टूट गई है, ब्रोक कर दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि शायद इसे ओपन कर लिया गया था कहीं पर। कोई प्रोडक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो उस पर एक सील लगा दी गई है, और अगर वह सील मार्क जो है अगर वह ब्रीच्ड नजर आ रहा है, ब्रोकन नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वह प्रॉपरली क्या नहीं है, पैक्ड नहीं था, या बीच रास्ते में किसी ने खोलकर देखा था उसे। जैसा कि आजकल का दौर होता है, आप देखते हैं कि फ्लिपकार्ट वाले जो हैं, अमेजन वाले जो हैं, या जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, वह बिल्कुल आपको एक प्रिकॉशंस जो है वो देते हैं कि भाई खुली हुई अगर इसकी पैकिंग जो है वो खुली हुई हो तो इसे वापस कर दीजिएगा। ये कुछ इस तरीके का मुझे बता रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि सर फिर एक सील्स जो है किस तरीके से कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करी जाती होंगी, फिर ये सील्स जो है किस तरीके से यूज करी जाती होंगी। अब निश्चित तौर पर पहले तो ये देख लीजिए, जिसने लास्ट स्लाइड देखना है वो लास्ट स्लाइड देख लीजिए भाई। अब मैं मोहिनी जी की बात पर आ रहा हूं। तो मैंने मोहिनी जी से कहा कि मोहिनी जी, हमारे पास जो कुछ जानकारी है ना इस पूरे पीरियड की जानकारी हमारे पास सॉरी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के आधार पर बेस्ड है। अब 2000 से ज्यादा सील्स हमें नजर आ रही हैं, और 2000 से ज्यादा अगर हमें सील्स नजर आ रही हैं, एक काम करता हूं ना मैं, लास्ट पॉइंट रिपीट कर दूं। तो ये स्क्वायर शेप नजर आ रहे थे और डायमेंशंस जो है वो 2x2 का नजर आ रहा था। हो गया ऋतिक? जल्दी से मुझे कमेंट करें। तो उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा कि सर तो फिर ऐसे कैसे, आप तो कह रहे थे कि कमर्शियल सिस्टम के लिए यूज करी जाती होंगी। अरे मेरे भाई और सभी छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा है, मैंने कहा ना, आर नॉलेज ऑफ द लाइफ ऑफ द इंडस वैली पीपल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन व्हाट द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स व्हिच वी आर हैविंग ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द 2000 सील्स। तकरीबन तकरीबन 2000 सील्स हमें मिली है। तो वो 2000 सील्स, जैसे एक सील आज भी होती है। अब मोहिनी जी, आप स्कूल जाती होंगी, आप कॉलेज जाती होंगी, आप यूनिवर्सिटी जाती होंगी, उस पर एक सील लगा के दे देते हैं, ठप्पा लगा के दे देते हैं ना एक। तो आप शायद उस सील की चर्चा कर रही थी। एक वो ईडी वाले आजकल आ जाते हैं, सीबीआई वाले आ जाते हैं, है ना?
तो ये लोग एक जो लॉक लगा के जाते हैं उस पे सील लगा के जाते हैं। हो सकता है आप उस सील की बात कर रही थी, एनसीईआरटी वालों ने उस सील की बात करी हुई है। लेकिन हम जिस सील की बात कर रहे हैं वो एक तरीके की एक स्पेसिफिक फॉर्म में हमें नजर आया है, और इस स्पेसिफिक फॉर्म में आदान प्रदान हुआ है इन सीलों का। कुछ स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ सील्स मोहनजोदाड़ो सॉरी हड़प्पन स्क्रिप्ट की कहां से मिली है, पर्सिया से सॉरी मैसिडोनिया से मिली है, गल्फ कंट्रीज से मिली है, और एट द सेम टाइम कुछ सुमेरियन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट की सील्स जो है वह हमारे यहां से मिली है। तो हम एक संबंध जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई देखो इनसे हमारे मैट्रिमोनियल संबंध तो रहे नहीं होंगे, ट्रेड संबंध रहे होंगे, तो हमने ट्रेड संबंध को कमर्शियल संबंध को जनरेट करने का प्रयास किया और यह कंक्लूड किया कि भाई ये कमर्शियल रिलेशंस जो है, ठीक है, ये कमर्शियल संबंध जो है ये किसके आधार पर स्टैब्लिश करे गए हैं, तो ये कमर्शियल संबंध जो है वो सील्स के आधार पर स्टैब्लिश करे गए हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग हियर, यू पीपल कैन लेट मी नो। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। So that I can head forward to the next one. So just try to hear me out over the use of the seals। अगर कोई seals के use पर आपसे कोई सवाल पूछता है तो हम उसको कैसे लिख कहने जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे भाई? It is believed that it is believed that क्या कंसीडर किया जाता है, क्या माना जाता है? बोले सर, it is believed that seals were used for seals were used for commercial purpose। कमर्शियल पर्पस, ये किस पर्पस से इस्तेमाल करी गई हैं? बोले सर कमर्शियल पर्पस से इस्तेमाल करी गई हैं। दूसरा, आपने एक मूवी देखी होगी मुझे उम्मीद है, मोहिनी जी, किताबों के अलावा क्या पिक्चर देखती हैं आप? तनीषा जी, महिमा जी, गिरिराज जी, अमन जी, हमारे सभी एमपीपीएससी और बीपीएससी के छात्र छात्र हैं। क्या आपके पास उतनी फुर्सत है जिसमें आप मूवी देख सकें? जैसे वो एक सवाल पूछा जाता था ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो ऐसे ही मेरी तरफ से सवाल है, क्या आपके पास उतनी फुर्सत है कि आप मूवी देख सकें? चलिए, तो आपने मोहनजोदाड़ो देखी होगी, तो आपने एक तो अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? और अभी ऑडियो वीडियो जो है वो क्लियर है? यू पीपल कैन लेट मी नो सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट।
ठीक है। अरे आ जाएगा, वीडियो भी आ जाएगा, परेशान नहीं होना है आपको, स्टे कनेक्टेड है ना। आवाज आ रही है? आवाज आ गई है तो वीडियो भी आ जाएगा। अरे महिमा जी और सभी छात्र छात्राएं, अगर ऑडियो आ गई है तो वीडियो भी आ जाएगा, परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो करके एक मूवी आपने देखी होगी। और रूलिंग क्लासेस जो है, अभी क्लियर है? जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, सो दैट आई कैन कंटिन्यू द सेशन। ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो करके आपने एक मूवी देखी होगी। हाँ इसलिए हाँ जी हो जाता है आजकल, है ना, ग्वालियर में वेदर का बड़ा खतरनाक सा सिस्टम चल रहा है। लेकिन बहुत लंबा नहीं होता है मेरे एंड से, है ना। अब वो एक आध मिनट की इंटरप्शन की वजह से अगर कोई क्लास को रिकॉर्ड देखना चाहे तो वो देख सकता है। आपके निर्णय का स्वागत है, आपका निर्णय जो है हमेशा ही सबका वंदनीय है और स्वागत योग्य है। चलिए वापस आ रहा हूं, ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा अभी। तो आपने देखा कि एक वेस्टर्न सिटाडेल नजर आया, वेस्टर्न साइड पर, एक ईस्टर्न साइड पर सिटाडेल नजर आया, जिसे अपर सिटाडेल और लोअर सिटाडेल के नाम से कंसीडर किया जाता है। तो लोअर सिटाडेल से जब ऋतिक रोशन जो है वो अपर सिटाडेल में जाना चाहता है तो उसे एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सील जो है उसकी जरूरत है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई सील्स का इस्तेमाल जो है कई बार वह आइडेंटिटी कार्ड की तरह भी किया जा रहा था। Am I very clear to all the persons those who are connecting with the very same? You people can let me know so that I can head forward to the next step. जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ भाई हमने ऐसा देखा हुआ है कि सील्स जो है कई बार वो एक इसकी तरह इस्तेमाल करी जा रही है, बोले सर आइडेंटिटी कार्ड की तरह इस्तेमाल करी जा रही है। अ फ्यू सील्स, a few seals were often used as identity card as well, often used as identity card। कई कीज जो हैं वो आइडेंटिटी कार्ड की तरह भी यूज करी गई है। अच्छा, अब हम जब इन सील्स की चर्चा कर रहे हैं तो इन सील्स का कोई बात नहीं अंजलि जी, है ना, नहीं अगर नहीं देखी है तो बिना देखे भी चल जाएगा काम, है ना। अभी समय उसमें 3 घंटे नहीं देना है अपने। कोई ऐसी मूवी होगी जो देखने योग्य होगी तो मैं बता दूंगा आपको कि ये मूवी देख लीजिएगा। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस ओनली। तो अब इनकी सील्स की जब हम चर्चा करने जा रहे हैं, ऑल द सील्स हैव, इनकी सील्स जो है इस पर क्या नजर आ रहे हैं? बोलिए सर, पिक्चर ऑफ एनिमल्स, हैव पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। हमें कुछ एनिमल्स के नजर आ रहे हैं, प्लांट्स के नजर आ रहे हैं, दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। और विद अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, तो क्या है? बोले सर एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो है तो वह पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के साथ नजर आ रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग है? जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए, क्या मैं आपको क्लियर हूं? एंड मोस्ट ऑफ द एंड मोस्ट ऑफ द seals have been written on both sides, have been written on both sides। क्या नजर आ रहा है? बोले सर अगर हम सील्स को देखें, अधिकांशतः सील्स जो है वो दोनों तरफ इन पर हमें लिखावट नजर आई है। कई बार यह कहा जाता है कि ये किस स्क्रिप्ट में लिखा गया, तो खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा गया, क्योंकि जब हम खरोष्टी स्क्रिप्ट की चर्चा करते हैं बेटा तो वह राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। द राइटिंग ऑन द सील, the writings on the seal were in the were in the खरोष्टी स्क्रिप्ट, खरोष्टी स्क्रिप्ट। और खरोष्टी स्क्रिप्ट की ब्रैकेट में बिल्कुल जरूरी है भाई लिख लेना राइट टू लेफ्ट। एक ऐसा लिखा जा रहा है, बोले सर यह राइट टू लेफ्ट लिखा जा रहा है। सम सील्स हैव बीन, अगर हम कुछ सील्स की चर्चा करें तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई इन पर हमें मैथमेटिकल इमेजेस भी नजर आई हैं, ज्योमेट्रिक इमेजेस भी नजर आई हैं, तो हम फिर से कंक्लूड कर सकते हैं कि एजुकेशनल पर्पज से इस्तेमाल करी जा रही होंगी।
some sales some sales have educational prints as well, educational prints as well, mathematical prints as well, mathematical prints as well. Probably used for educational purpose. किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया? बोले सर एजुकेशनल पर्पस जो है इसके लिए इस्तेमाल किया गया होगा. Am I very clear to all the persons those who are connecting here? You people can let me know. तो ये वो सील्स है जिन पर हम चर्चा कर चुके हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा हैं अभी उन्हें पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर होगा ताकि हम बीट्स की ओर अब बढ़ सकें. भाई एक और पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ चर्चा करना चाहता हूं, बल्कि आपसे पूछना चाहता हूं. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए अंशिका जी, क्षमा जी, अगर हम सील मेकिंग फैक्ट्री पर चर्चा करते हैं, ये जो सील मेकिंग फैक्ट्री है, ये सील मेकिंग फैक्ट्री हमें कहां से नजर आई? आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली. मैं चाहता हूं कि आप सभी छात्र छात्राएं, तो विधि जी हेड स्टार्टेड चंद हुडरो से नजर आई. कहां से नजर आई? बोले सर चंद हुदड़ो जो है, तो चंद हुदड़ो जो है वो है आपका सील मेकिंग फैक्ट्री रहा. चलिए ठीक है, अब हम बीट्स की ओर आ रहे हैं. यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर द बीट्स एज वेल. सॉरी. सो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं खास इनके बीट्स के कंटेक्स्ट में. हमारे पास फैक्ट्री का आइडिया ऑलरेडी है कि बीट मेकिंग फैक्ट्री जो है वो हमें लोथल से नजर आई है. लेकिन इसके साथ साथ हम और क्या चर्चा करना चाहते हैं? तो हम चर्चा करना चाहते हैं कि ये जो बीट्स हैं वो बने किस किस के थे. ये कालीबंगन कैसे, कौन कमेंट कर रहा है? अंजलि जी, कालीबंगन मतलब लोथल जो है वो प्राइमरली आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. बीड मेकिंग फैक्ट्री के लिए मैंने आपको बताया था कि एक हमें फैक्ट्री नजर आ रही है जिसमें 11 रूम बने हुए हैं, एक कर्टी यार्ड बना हुआ है, एक स्टोर रूम बना है, गार्ड रूम बना हुआ है. दैट्स व्हाट वी हैड डिस्कस्ड. लोथल से धोलावीरा से नजर आया है. चलिए, सो बीट्स पर चर्चा कर रहे हैं. तो बीट्स क्या है? सबसे पहले तो अबंडेंट साइज में पाए गए हैं. सॉरी, बीट्स वर अबंडेंट. Beads were abundant and and made up of gold, silver, copper, bronze, gold, silver, copper, bronze, stone, semi-precious stones, etc. Semi-precious stones, etc. Am I very clear to all the person with the very same कि हाँ भाई stones के बने हुए, इसके बने हुए. And they were of different size and were of different shapes. आपको याद है अंजलि जी, हमने गोल्ड के बीट्स पर चर्चा करी थी और मैंने एक आपका जो नेकलेस है उस नेकलेस पर चर्चा करी थी. ये वह साइट है जिस साइट से हमें नेकलेस के ट्रेसेस नजर आए हैं और जो गोल्ड बीट्स है वो स्ट्रिंग्स में हमें नजर आ रहे हैं. 5 to the 6 स्ट्रिंग्स जो है इसमें नजर आ रहे हैं. आप सभी छात्र छात्राएं मुझे आंसर कमेंट करके बता सकते हैं कि वह कहां से नजर आया था. विच साइट आई एम टॉकिंग अबाउट? चलिए ठीक है. सो राइट नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. बीड मेकर शॉप्स, bead maker shops have also been found from Lothal and Dholavira. From Lothal and Dholavira. उम्मीद है ये बीट्स जो है वो आपको पूरी तरह से क्लियर है. अब अगर हम इनकी सोसाइटी के कंटेक्स्ट में चर्चा करें
कि इनकी सोसाइटी कैसी नजर आई है हमें। सोसाइटी ऑफ इंडस वैली पीपल, इंडस वैली पीपल, जो हमारे इंडस वैली लोग रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन रही है, इनका जो समाज रहा है वो एक इस तरीके का रहा है। बोले सर, अकॉर्डिंग टू वी गॉर्डन चाइल्ड, अकॉर्डिंग टू वी गॉर्डन चाइल्ड, वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्बन सोसाइटी civilization. Am I very clear to all the persons, those who are correcting? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल क्लियर हूं। वी गॉर्डन चाइल्ड क्या कह रहे हैं? विश्व की सबसे पहली ऐसी सभ्यता जो शहरी सभ्यता है, एंड कंप्राइजिंग मोस्टली मिडिल क्लास पीपल, मिडिल क्लास पीपल। अधिकांशतर क्या नजर आ रहे हैं? बोले मिडिल क्लास पीपल नजर आ रहे हैं। सोसाइटी हैड अ डिवीजन, या हम ऐसे कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिटेडल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अपर सिटेडल एंड लोअर सिटेडल एंड लोअर सिटेडल एंड लोअर सिटेडल, it could be concluded it could be concluded that society had a division, that society had a division, ruling classes, upper classes, ruling classes, upper classes were residing on the western part, whereas lower class people, middle class people were residing on the eastern side, in lower citadel. Am I very clear to all the persons, those who are correcting? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को क्लियर हूं। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। हम क्या ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई कई सारी क्लासेस जो है वह रही होगी, क्योंकि हमारे पास देखो कास्ट का तो ट्रेस है ही नहीं मेरे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि राज जी, लक्ष्मी जी, अमन जी, आशुतोष जी, विशाल जी, नेहा जी, खुशबू जी, श्वेता जी, प्रियंका जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्र हैं। नो ट्रेसेस ऑफ द कास्ट सिस्टम, बट एट द सेम व्हाट वी कैन कंक्लूड, तो हम निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं निवेदिता जी, देयर वर प्रेजेंस, और किसका प्रेजेंस नजर आया? बोले सॉरी, प्रेजेंस ऑफ वेरियस क्लासेस such as priest, हमें यहाँ पुजारी जो है तो पुजारी के ट्रेसेस नजर आए, मर्चेंट्स जो है तो हमें इनके ट्रेसेस नजर आए, क्राफ्टमैन जो है तो हमें क्राफ्टमैन के ट्रेसेस नजर आए, पीजेंट्स जो है ऑब्वियस सी बात है कि भाई किसानों के ट्रेसेस भी नजर आए, एंड लेबरर्स एज वेल, और साथ ही साथ हमें लेबरर जो है तो लेबरर के ट्रेसेस भी नजर आए। Am I very clear to all the person with the voice है? और अब हम एक आखिरी पॉइंट इसके आधार पर कंक्लूड करने जा रहे हैं। सोसाइटी इंडस वैली सिविलाइजेशन सोसाइटी can be concluded as egalitarian society, sorry, or matriarchal society, on the basis of
on the basis of seals in which women enjoyed a higher women enjoyed a higher position in the society. Women enjoyed a higher position in society. Am I very clear to all the person with the very same? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं, so that I can head forward to the next one. क्या आपको पूरी तरह से यह क्लियर है कि भाई जो फीमेल फिगराइंस है दे आउट नंबर द मेल फिगराइंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर गोइंग टू कंक्लूड द वेरी सेम. तो इस आधार पर ये जो है हमने कंक्लूड किया है. चलिए ठीक है. सो दैट्स इट फॉर द डे. एग्जैक्टली हमें फ्राइटिंग अभी वो एक आध नजर आया हुआ है ना श्वेता जी, बहुत सारी सील्स में हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आया. दैट्स वाई एक आध सील अगर हमें ऐसा नजर आ रहा है जब महिला जो है वो झगड़ रही है तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है. तो अभी हम सेशन को यही कंक्लूड करेंगे, लेकिन आज इंडस वैली सिविलाइजेशन को मैं सम अप करूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली एक सेशन आपका आईवीसी का इवनिंग में और रहेगा, क्योंकि आज ट्यूसडे है और आज ट्यूसडे में तो आपका बिहार वालों की क्लास है. ठीक है ठीक है कोई बात नहीं. कल आपकी मॉर्निंग में इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा और कल नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, हम एक सेशन और लेकर चलेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूं कि एक सेशन पर और चर्चा करी जाए जिसमें आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन को थोड़ा सा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से. और नहीं अंजलि जी मैं अवेलेबल नहीं हूं उस समय में, तो आपका एक सेशन और रहेगा आईवीसी पर, जिस सेशन में हम जो चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर और एट द सेम टाइम इनके डिक्लाइन को लेकर. और कल के ही सेशन में ये हमारा रहेगा. अपर सिटाडेल और लोअर सिटाडेल में जो है डिफरेंसेस नहीं है सर, है ना, तभी तो हम चर्चा कर रहे हैं बेटा कि अपर सिटाडेल जो है उसमें सेटलमेंट्स हमें कम नजर आ रहे हैं और लोअर सिटाडेल जो है. मोहिनी जी पूछ रही है सर एगैलिटेरियन सोसाइटी आप कैसे कंक्लूड कर रहे हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द सील्स, है ना. देखो अगर हम गलत फैक्ट प्रूव करने जाए ना तो सारी चीजों को गलत प्रूव कर सकते हैं मोहिनी जी, जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा हुआ है. आपको ये समझना है, हम जब डिक्लाइन ऑफ एंड डिसअपीयरेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं ना बेटा, किसी भी फैक्ट पर भरोसा कर पाना जो है वो असंभव होता है. समझ ही नहीं सकते कि 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर की ये जो सिविलाइजेशन है वो किससे डिसअपियर हो गई. क्यों? क्योंकि अगर हमने उसमें सवाल उठा दिया तो हमें लगातार उस चीज को कह रहा हूं कि भाई हमें महिलाओं का स्टेटस जो है वो एक ऐसा नजर आ रहा है, अच्छा नजर आ रहा है, मतलब महिलाएं जो है वह पुरुषों के साथ लगातार काम करते हुए नजर आ रही हैं. और यहां तो फीमेल फिगराइंस आउट नंबर द मेल फिगराइंस. महिलाओं की इतनी पिक्चर्स नजर आई हैं जो पुरुषों से ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर समाज जो है वह मैट्रियार्कल रहा है. अगर आप एगैलिटेरियन नहीं कंक्लूड करना चाहते आप मैट्रियार्कल कंक्लूड कर दीजिए. एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? शार्प 12 यू विल बी हैविंग एमपीजी की क्लास. 12 बजे आपकी एमपीजी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी. थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन. अंजलि जी एगैलिटेरियन का मतलब होता है समान, जहां पुरुषों का और महिलाओं का स्टेटस जो है वह बराबर होता है. चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन.